Within these walls, some of the world's finest health products are researched, developed, and manufactured. For more than 30 years, Myron Wentz began his studies in the pre-med program at North Central in Illinois, where he cultivated his desire to create the tools and solutions for medicine, rather than solely practice as a medical doctor. He took a job for the state health department as a microbiologist studying immunology and infectious diseases. His desire to master the skills of his job led him to the University of Utah, where he received his doctorate in microbiology and immunology. I realized early on that in the laboratory we were handicapped with the unavailability of test systems to identify viral infections. And it was after 3 years of dealing and being frustrated with this that I decided to try my hand at it. To help supplement his own health. And when his friend brought in those supplements, he looked at the label and he said, I can't believe this is what they're feeding to humans. If we fed these same nutrients to the cells in our laboratory, we'd be out of business. In 1992, he sold Gull Labs to found USANA Health Sciences, now fully dedicated to solving the problems of cellular nutrition by transitioning his efforts from diagnostics to maintaining health. Back in the early 90s, I think the supplement market was dominated by the supermarket brands. And Dr. Wentz's vision was to develop the highest quality, science-based nutritional products possible that would move the needle on the supplement industry. Despite USANA's global success in providing the best cellular nutrition products, he felt a growing restlessness. While the company had made remarkable strides in maintaining the health of millions of people, he knew there was more to be done in the war against degenerative disease. Driven by his unwavering commitment to advancing health, he decided it was time to channel his knowledge and expertise into the realm of treatment. In the year 2000, he founded the Sanoviv Medical Institute, a holistic healing and wellness facility that would provide the most advanced treatments available. He wanted to create an atmosphere almost like a laboratory where there were no toxins, where people could come who needed to have their health improved and could receive through a natural way the best opportunity to maintain and or regain their health. And it's one of the premier facilities in the world. Just as Gull Labs and USANA were ahead of the curve when they were founded, he was determined Sanoviv would go a step further. The Institute became a pioneer in using state-of-the-art diagnostic and therapeutic methods to treat patients with complex health conditions. Dr. Myron Wentz's journey is a testament to what can be achieved when passion meets purpose. Good evening, everyone. How are you all? आज हमारा सेशन है हार्ट हेल्थ पे एंड प्लीज़ आप अपने मेंबर्स को टीम मेंबर्स को मैसेज कर दीजिए सो दैट एवरीबडी जॉइंस और हम अनदर 2-3 मिनट्स में स्टार्ट करेंगे एंड आई एम नेहा आहूजा न्यूट्रिशनिस्ट dietitian and over 11 years of experience, almost 12 years now, and in similar field of nutrition, health, dietetics, and I am now I'll complete 6 months with USANA in October. एंड मेरा हमेशा से बैकग्राउंड साइंस न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स का ही रहा है और मैंने अपनी पढ़ाई भी फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में मास्टर्स किया है एंड ऑफ कोर्स आई हैव ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट साइंस एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर विद यूसाना बिकॉज यूसाना इज अ साइंस बैक कंपनी एज यू हैव सीन इन द वीडियो की डॉक्टर मायरन वेंट्स ने स्टार्ट की थी एंड ही हिमसेल्फ इज अ साइंटिस्ट, इज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, and he has actually researched for so many years. Thank you, Manoj ji. I have not completed yet, but I will be completing in October.
6 months. And thank you so much for all your, patience, all your support. And till now, everyone, thank you so much. And 1 minute और हम वेट करते हैं. And let's start today's session, which is on health awareness, heart health. How actually can you take care of your health? How important it is to take care of your health? बहुत सिंपल वेज हैं. जस्ट आपको अवेयर रहना है, अपने कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस रखने हैं, और एक्चुअली हार्ट क्या होता है, कहाँ होता है, क्या फंक्शन करता है, हम ये भी डिस्कस करेंगे. और कई लोगों को ये कंफ्यूजन भी होता है समटाइम्स कि हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये सब क्या है. लेट्स टॉक अबाउट दिस इन दिस सेशन. एंड आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन. आप लोग प्लीज जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए एंड अपने टीम मेंबर्स को बुलाइए, सो दैट वी हैव गुड पार्टिसिपेशन एंड वी ऑल लर्न अबाउट हार्ट टुडे. ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल? आप सबको मेरा स्क्रीन विजिबल है? ओके, दैट्स ग्रेट. सो हम और 1 मिनट में स्टार्ट करें. ओके, आई स्टार्ट. आई थिंक पीपल विल जॉइन ग्रेजुअली. सो आज हम बात करेंगे हार्ट हेल्थ की, सिंपल वेज टू प्रोटेक्ट योर हार्ट, राइट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हार्ट से ही हम हार्ट इज द मेजर मेजर ऑर्गन, वेरी हार्ड वर्किंग ऑर्गन, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गन. हम हार्ट हेल्थ मैटर क्यों करती है? व्हाई डू यू फील कि आप मुझे लिखिए, प्लीज बताइए कि आपके लिए हार्ट हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट अगर है तो क्यों है? व्हाई हार्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू? आई नीड आंसर्स. जल्दी जल्दी मुझे एक शब्द में बताइए कि हार्ट हेल्थ मैटर, अगर आपको मैटर करती है, अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो क्यों इम्पोर्टेंट है? Why do you feel? Maybe 1 word or 2 words. Why heart is important? I am waiting for your answers. ब्लड सर्कुलेशन, यस, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है हार्ट. और हार्ट ब्लड प्योरिफिकेशन, यस रत्ना जी, दैट्स अमेजिंग. प्योरीफाई भी करता है हार्ट हमारा ब्लड, और पूरे ऑर्गन्स, पूरे सेल्स, सारे टिश्यूज तक. yes it matters. Kalpana ji is saying, and important for healthy living. It's a powerhouse. Sandeep ji is saying yes. Definitely. So why not we learn and be aware? Oxygen flow, Manoj ji कह रहे हैं. Yes, oxygen. Yes, बहुत सारे functions हैं, and it's this is why we are alive, right? और हार्ट जो है इस बॉडी का इंजन है. बेसिकली वो हमारी पूरी बॉडी को चला रहा है, राइट? इंजन है, हम उसके उसके भरोसे काइंड ऑफ हम चल रहे हैं. और ब्लड और ऑक्सीजन को पूरे एवरी सेल, जैसे अभी सब लोग ने बात की कि ब्लड सर्कुलेशन जो है 24/7 जो है हमारी पूरी बॉडी के सेल्स तक प्यूरिफाई ब्लड जो है वो पहुंचाता है. और जो भी इम्प्योर ब्लड है, टॉक्सिन्स हैं, जो भी ब्लड में आ रहे हैं, वो हार्ट उसको प्योरीफाई करके, रिसर्कुलेट करके, फिर से बॉडी सेल्स में प्योर करके भेज रहा है. और इसलिए भी मैटर करता है हार्ट, बिकॉज हार्ट डिजीजेस जो हैं दे आर नंबर 1 कॉजेज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड. और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है. दिस इज अ वेरी वेरी लीडिंग कॉज. आजकल आई थिंक हम लोगों ने बहुत सारे केसेस, अगर आप मीडिया पे देखेंगे, न्यूज में देखेंगे, लॉट ऑफ पीपल, यंग पीपल जो है उनको हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट इश्यूज के वजह से देर आर सो मेनी डेथ्स हैपनिंग. सो दैट इज वाई हार्ट को हमें हेल्दी रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है. हार्ट कहाँ पे होता है? इन द लेफ्ट सेंटर, मतलब होता वो सेंटर में ही है, बट काइंड ऑफ स्लाइटली टिल्टेड होता है टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट? सो हमें ऐसा लगता है कि हमारा हार्ट लेफ्ट में है, क्योंकि हल्का सा लेफ्ट जो है, लेफ्ट में टिल्टेड होता है. इट्स प्लेस्ड इन द सेंटर, राइट? और हमारे फिस्ट के साइज का है. इट्स नॉट वेरी लार्ज ऑर्गन, मतलब बहुत
बट हमारे फिस्ट की साइज, मुट्ठी के साइज का ही ऑलमोस्ट ये ऑर्गन होता है। और ये हमारे ब्लड को ऑक्सीजन देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है और वेस्ट को रिमूव करता है। और हमारा नॉर्मल जो हार्ट बीट होता है ना, उसका रेट 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है। वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जैसे बच्चों का हार्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, जो पैदा होते हैं बच्चे, उनके 120 तक भी जाता है। बच्चों का हमसे, अडल्ट से, बिकॉज यू नो दे आर ग्रोइंग, दे हार्ट इज बिल्कुल जो बॉडी होती है यंग होती है, एंड दे नीड ऑक्सीजन, दे नीड ब्लड टू ग्रो, राइट। तो इसीलिए उनकी हार्ट बीट थोड़ी सी ज्यादा होती है नॉर्मल अडल्ट से। ओके, सो हार्ट होता क्या है, बेसिक बेसिक मैं आपको बताती हूँ। उसके 4 चेम्बर्स होते हैं, राइट। 4 चेम्बर्स होते हैं। लेफ्ट में 2 होते हैं, राइट में 2 होते हैं, जिनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। चेम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। और वाल्व्स होते हैं 2, जो आपके चेम्बर्स है ना, उसके बीच में एक लेयर है और एक वाल्व है, जो कि बेसिकली खुलता है, बंद होता है, खुलता बंद होता है। एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में ब्लड आता है। उस चेम्बर में आने के लिए एक काइंड ऑफ ढक्कन सा होता है, काइंड ऑफ वाल्व। और वेसल्स होती हैं, पाइप्स कह लीजिए, या उसको आर्टरीज कह लीजिए, वेन्स कह लीजिए। जो रेड कलर का दिख रहा है ना आपको, राइट हैंड साइड में रेड कलर की जो वेन्स है, वो उसका इंडिकेशन ये है कि वो प्योरिफाइड ब्लड है उसमें। और जो ब्लू कलर है ना, वो वेन्स होती हैं जिसमें इम्प्योर ब्लड हार्ट तक आता है, वो प्योर होता है, वो आके आर्टरीज में आता है, और आर्टरी से जो हार्ट है वो पूरी बॉडी में पंप आउट करता है। सो रेड इंडिकेट्स प्योर ब्लड, एंड जो ऊपर जो मेन आपको दिख रहा है ना, मोटा मोटा वेसल्स, सो जो इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं फ्रॉम आवर ऑर्गन्स टू हार्ट, उसको हम वेन्स कहते हैं। और आर्टरीज में प्योर प्योर ब्लड होता है, राइट। हाउ ब्लड फ्लोज, स्टेप 1 क्या होता है कि ब्लड जो है पूरी बॉडी से वापस वेन्स के थ्रू, जो इम्प्योर ब्लड है वो आपके राइट वाले हार्ट में आता है, राइट में जो चेम्बर्स हैं उसमें आता है। फिर वो वहां राइट जो आपके चेम्बर्स हैं उनसे लंग्स पे जाता है, लंग्स पे जाता है, उसको ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, वो ब्लड प्योरीफाई होता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो आपके लेफ्ट हार्ट में आता है, लेफ्ट वाले चेम्बर्स में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है। और लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से वो पूरी बॉडी में फ्लो होता है। तभी आपको हार्ट बीट ज्यादातर लेफ्ट में सुनाई देती है, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ही हार्डली पुश कर रहा है, पंप कर रहा है ब्लड, राइट, लेफ्ट वाला जो आपका चेम्बर है, टू द एंटायर बॉडी, राइट। ओके, सो ये एक वीडियो है वे वी सी कि हम 2 वैल्यूज मेजर करते हैं, राइट, हार्ट ब्लड प्रेशर की। सो व्हाट इज दैट, एनीबडी नोज दैट? आप मुझे बताएंगे। 120, 80 नॉर्मल कहते हैं ब्लड प्रेशर को, बट व्हाट इज 120 एंड व्हाट इज 80? डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक, यस, डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक, यस। सो डायस्टोलिक सिस्टोलिक होता है जब हम अपर, सॉरी, ओके, सॉरी, ओके, यस, जब हम अपर पोर्शन, जब हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, हार्ट इज लाइक पंपिंग, तब वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और जब 2 पंप्स के बीच में जब हार्ट थोड़ा सा रेस्ट करता है, वापस अपनी शेप में आता है, उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सो उसका जो नॉर्मल प्रेशर है वो 120, 80 होता है। बट ऑफ कोर्स विद एज समटाइम्स इट गोज अप। विद एज नॉर्मली जो है 120, 80 नहीं भी रहता है, 130, 140 भी हो जाता है, दैट्स नॉर्मल। Depends on the age, on the health condition, right? ओके, सो अब हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक, एक और वीडियो है जहाँ पे आप ये समझेंगे कि हार्ट अटैक क्या, क्यों हमें होता है, और क्या उसका रीजन, हाउ। ओके,
We learned about heart attacks, but please घबराइए मत इससे. We need to prevent this situation, right? पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस है. डोंट कंफ्यूज विद देम. हार्ट अटैक इज बेसिकली जब हम अभी आपको पूरा समझाया कि ब्लड जो है हार्ट मसल्स तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है, क्लॉट्स होने लगते हैं, टिश्यू डैमेज होने लगता है, प्लेक्स डेवलप होने लगते हैं. कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? दैट इज वेरी वेरी सडन एंड दैट इज एन इलेक्ट्रिकल फेलियर. मतलब अचानक से हार्ट बीट का रुक जाना या ब्लड सर्कुलेशन का रुक जाना. टाइप क्या होता है? ये सर्कुलेटरी, मतलब ऑफ कोर्स ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ना, तो सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है, ब्लड सप्लाई जो है वो हिंडर होता है. और ये इलेक्ट्रिकल रिदम का माल फंक्शन है. मतलब रिदम हो रहा है, हार्ट बीट पंप कर रहा है, वो रिदम जो जनरेट हो रही है जिसको हम मेजर करते हैं कई बार यहाँ से, वो उसका डिसफंक्शनिंग है. सिम्टम्स मेजरली जो है हार्ट अटैक में चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, अभी आपको मैंने पूरा दिखाया व्हाट कैन बी द सिम्टम्स. बट कार्डियक अरेस्ट इज सडन सडन कोलैप्स. यू डोंट इवन नो कि ये हुआ क्या. हार्ट अटैक आपको थोड़े थोड़े सिम्टम्स पहले से देता है, दे वॉर्न यू. बट कार्डियक अरेस्ट में कोई वार्निंग नहीं है, कोई आपको ऐसे पहले से सिम्टम्स नहीं होते हैं. अनकॉन्शियस हो जाता है, पल्स अब नॉर्मल, ब्रीदिंग एंड अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है इमिजिएटली. अगर आप विद इन 5 मिनट्स आप उसको हम कोई थेरेपी नहीं देते हैं. एंड ऑनसेट होता है ग्रेजुअली हार्ट अटैक का, ओवर मिनट्स आवर्स, मतलब धीरे धीरे. समटाइम्स पीपल फील नोजिया, हेडेक्स. वो ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे टाइम होता है उसमें. बट वी शुड इमिजिएटली एक्ट ऑन दैट. और कार्डियक अरेस्ट होता है अचानक से, अब्रप्ट हो जाता है, विदाउट एनी वार्निंग, कोई उसमें घंटे या मिनट्स नहीं मिलते हैं. दैट्स वेरी वेरी क्रिटिकल. एंड ऑफ कोर्स हार्ट अटैक्स कैन डू नॉट लीड टू कार्डियक अरेस्ट, बट हार्ट अटैक कैन ट्रिगर कार्डियक अरेस्ट, और कार्डियक अरेस्ट कैन बी कॉज्ड बाय हार्ट अटैक्स. सो हार्ट अटैक्स बेसिकली अगर होता है तो वो, अगर कई लोगों को 2 बार 3 बार हार्ट अटैक्स आ चुके होते हैं, and that can suddenly lead to a cardiac arrest, right? So इसका burden global अगर हम देखें तो 2022 में 19.8 मिलियन पीपल जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस से उनकी डेथ्स हुई. 85% जो है हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक. एंड मोस्टली ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की वजह से जो डेथ्स होती हैं वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में ज्यादा होती हैं. दिस इज अगेन अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेटा. ग्लोबल जैसे अगर आप देखें 6.2 जो है 2021 में ये अफेक्ट हुए थे. और ग्लोबल सीवीडी डेथ्स जो है ग्लोबली 19.4 मिलियन हुआ था. ये 2021 का डेटा है. इंडिया में जो सीवीडी है, मीन सीवीडी इज कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, एनीथिंग जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे जो है, दैट्स द मेजर कंट्रीब्यूटर इन इंडिया. एंड ये ऑनसेट जैसे अभी हमने बहुत सारे रिसेंटली आप लोगों ने भी सुने होंगे कि अर्लियर एज में भी ये ऑनसेट हो रहा है. प्री मच्योर डेथ्स हो रहे हैं, मोर दे आर हायर इन इंडिया देन ग्लोबल एवरेजेस. और ये बहुत बहुत वैलिड सोर्स का डेटा है. द लैंसेट इज अ वेरी वेरी रेप्यूटेड, वेरी हाईली साइंटिफिक जर्नल. Lancet is one of the best journals in the world. So उसका ये कहना है. और इंडिया में जो होता है 11% इंडियन अडल्ट जो है वो प्रेवलेंस है. अडल्ट में 11% जो है वो दे पीपल आर हैविंग कार्डियोवास्कुलर, एनी काइंड ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस. और इस्कीमिक हार्ट डिजीज या स्ट्रोक जो है वो वन ऑफ द मोस्ट टॉप कॉजेज ऑफ डेथ्स है इन इंडिया, राइट. इस्कीमिक हार्ट डिजीज क्या होता है? हार्ट जो है इनसफिशिएंट, वही हार्ट अटैक, इनसफिशिएंट ब्लड या ऑक्सीजन उस तक पहुंचता नहीं है, आर्टरीज बहुत नैरो हो जाती हैं, प्लेक बिल्डअप हो जाता है. इसको दीज आर द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ्स इन इंडिया.
सिम्टम्स जैसे उस वीडियो में भी आपको बताया था कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जहाँ पे यू शुड टेक केयर डॉक्टर और मेडिकल हेल्प, विच इज लाइक चेस्ट पेन, प्रेशर, या फिर वो आर्म्स तक जा रहा हो, जॉ, बैक। समटाइम्स वी थिंक कि आर्म्स पे ये रेगुलर जो प्रेशर इतना ज्यादा जा रहा है, पेन जा रहा है, ये ऐसे ही होगा, बट समटाइम्स it's a cause, it's a symptom of heart problems. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, जब हम बहुत ज्यादा हांफने लगते हैं, बहुत ज्यादा हांफने लगते हैं। सडन स्वेटिंग, बहुत ज्यादा, मतलब गर्मी नहीं है, ठंड में भी हमको पसीना आने लगता है, या नोजिया, वॉमिटिंग, एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, समटाइम्स हमें लगता है पेट खराब है, राइट? लेकिन अगर वॉमिटिंग भी ज्यादा हो रहा है तो यू शुड इमिडिएटली गो टू अ मेडिकल डॉक्टर। ऐसा नहीं है कि ओके हम कल तक वेट करेंगे, देखते हैं वॉमिटिंग बंद होती है कि नहीं। प्लीज डोंट टेक दैट रिस्क, स्पेशली इफ कोई ना कोई हार्ट आपको इश्यूज रहे हैं, या आपके हिस्ट्री में रहे हैं, या आप ओवरवेट है, या आपको कोई एग्जिस्टिंग मेटाबॉलिक डिजीज है, डायबिटीज है, या फिर आप आपकी लाइफस्टाइल, आपको सबको पता होता है कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, राइट? डिजीनेस, फेंटिंग अगर हो, या स्वेलिंग अगर आए फीट्स और लेग्स में जो बहुत ज्यादा रहे और वो जाए ना, ऑफ कोर्स अगर अनयूजुअल स्वेलिंग है तो आप प्लीज वेट मत करिए। यू डोंट हैव टू वेट। हम लोग कई बार होते हैं कि ओके अवॉइड करने लगते हैं, ये ठीक है, देखते हैं, कल तक देखते हैं, परसों तक देखते हैं, एक हफ्ता देखते हैं कि ये स्वेलिंग जाती है कि नहीं, बट डोंट टेक दैट लाइटली। रिस्क जो होते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के, दो तरीके के होते हैं जो हम एक्चुअली चेंज नहीं कर सकते, बट देर आर सर्टेन रिस्क जो हम एक्चुअली चेंज कर सकते हैं। रिस्क जो चेंज कर सकते हैं, जैसे ऑफ कोर्स आफ्टर 40 जो है रिस्क बढ़ जाता है हार्ट कार्डियोवास्कुलर, बिकॉज हमारे जो हार्ट की वेसल्स होती हैं वो थोड़ी सी टाइट, स्टिफ होने लगती हैं विद एज। फैमिली हिस्ट्री अगर है, या फिर ऑफ कोर्स कोई कोई ऐसी डिजीज है जो आपको लगता है कि दैट कैन लीड टू हार्ट डिजीजेस, ऑफ कोर्स उसका रिस्क होता ही होता है। men are higher at higher risk, and of course risk for women increases after menopause. Risk that we can change, of course ब्लड प्रेशर को मेंटेन रख के, एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल्स को मैनेज करके, हाई ब्लड शुगर को मैनेज करने कर सकते हैं। देन ऑल द लाइफस्टाइल इश्यूज जैसे स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, स्ट्रेस, excess of junk food, yeah, excess of food which is high in sugar, fat, salt, poor sleep, stress, अनहेल्दी डाइट, इनएक्टिविटी, एक्सेस ऑफ वेट, ओबेसिटी, ये सारे जितने भी हैं फैक्टर्स जो हम एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं, व्हाई नॉट वर्क नाउ, राइट? व्हाई नॉट वर्क सो दैट वी कैन एक्चुअली प्रिवेंट एनी CVDs, राइट? हार्ट हेल्दी ईटिंग क्या है? हाफ प्लेट, जब भी आप प्लेट कोई आप अपनी मील के लिए लेते हैं ना, तो इंश्योर दैट हाफ आपकी प्लेट वेजिटेबल्स से हो, मतलब सैलेड प्लस सम कुक्ड वेजिटेबल, हाफ प्लेट शुड बी ऑफ योर वेजिटेबल्स। दिन भर में एक जो फ्रूट होना चाहिए वो 100 ग्राम्स ही होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। इवन फॉर नॉर्मल पर्सन, ऐसा नहीं है कि हम ये जिनको हार्ट इश्यूज हैं या जिनको डायबिटीज है उनके लिए मैं बता रही हूँ, दिस इज फॉर प्रिवेंटिंग, राइट? हेल्दी ऑयल्स यूज करिए, प्लांट बेस्ड ऑयल्स यूज करिए, जैसे मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ऑलिव, यूज अ मिक्सचर ऑफ ऑयल्स। मस्टर्ड ऑयल इज वेरी वेरी गुड। घी भी आपको अगर खाना है तो 1 से 2 टीस्पून ही सैचुरेटेड फैट हमें दिन भर में लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। एंड यूज मिक्सचर ऑफ ऑयल्स, मतलब जैसे मैं अपने घर में जनरली मिक्सचर ऑफ ऑयल्स मंगाती हूँ। मस्टर्ड भी होता है, सनफ्लावर भी होता है, ग्राउंडनट भी होता है, sometimes it's rice bran oil, sometimes it's olive oil. I always use a mixture of oils, right? 1/4 of plate, 1/4 जो है इतना सा आपके सीरियल्स या अनाज होने चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए सीरियल्स। एंड ऑलवेज यूज होल व्हीट या होल ग्रेन्स जिसमें फाइबर कंटेंट अच्छा हो। जो प्रोसेस या जो रिफाइंड सीरियल्स होते हैं उनका आपको, इवन कई लोग सोचते हैं कि सूजी is better than maida, but suji is again not better than maida. It's not healthy at all. Suji is refined, it's processed,
बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा नहीं कि हम ओके हम मैदा नहीं खा रहे लेकिन हम सूजी खा रहे हैं तो हेल्दी होगा, नहीं, सूजी को भी आपको लिमिट रखना है। सूजी इज ऑल्सो वेरी प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड। होल व्हीट आप लीजिए, जब भी आप आटा लीजिए तो उसमें आप लेबल्स जरूर पढ़िए, होल व्हीट है मतलब तीनों लेयर्स उसके इंटैक्ट होने चाहिए, फाइबर कंटेंट उसका अच्छा होना चाहिए। सिर्फ व्हीट नहीं, होल व्हीट शुड बी रिटन ऑन द पैक्स। होल व्हीट मतलब पूरा ग्रेन यूज किया गया है। मिलेट्स का यूज करिए, ज्वार बाजरा जौ, ये रागी, इन सब, ये इनके जो है दे हैव मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स। और 1/4 जो है, हाफ प्लेट हमारी वेजिटेबल्स, 1/4 प्लेट आपकी सीरियल्स, और 1/4 प्लेट जो रह जाती है वो प्रोटीन, लीन प्रोटीन, मतलब जो बहुत हाई इन फैट प्रोटीन नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा फैट में बना हुआ, बहुत ज्यादा फैट वाला प्रोटीन नहीं होना चाहिए, लीन प्रोटीन्स होने चाहिए, दाल्स बीन्स। अगर आप पनीर भी बना रहे हैं तो कोशिश करें घर पे लो फैट मिल्क से बनाएं। जो दूध आप पी रहे हैं, अगर आपके घर में नॉर्मल फुल फैट मिल्क आता है तो आप उसको बॉईल करें, 2 बार बॉईल करें, उसके ऊपर जो क्रीम की लेयर आती है उसको आप हटा दें, और जो दूध नीचे रह जाता है आप उसको यूज करें फॉर पनीर, कर्ड, या पीने के लिए, बिकॉज दैट बिकम्स अ लिटिल लोअर इन फैट, बिकॉज आपने ऊपर का जो फैट कंटेंट है वो तो निकाल दिया, राइट। सो आप वैसे भी यूज कर सकते हैं, अलग से आपको टोन या डबल टोन मिल्क की लेने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू आर बाइंग दैट्स गुड। और फूड्स टू प्रेफर, जैसे इन वीडियोस में भी आपने देखा कि आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेकिन फ्रूट्स अगेन 100 ग्राम्स, नॉट मोर देन दैट। पल्सेस, आपको अच्छे गुड फैट्स लाइक आलमंड्स, वॉलनट्स, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मात्रा में आप खा रहे हैं। 3 से 4 बादाम, एक वॉलनट आपको दिन भर में चाहिए। 1 टीस्पून ऑफ सीड्स, एनी सीड्स यू कैन टेक, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये जरूर इंक्लूड करें। अगर आप ऐसे नहीं खा सकते तो जैसे कर्ड होता है, कर्ड में आप फ्लैक्स सीड्स डाल सकते हैं। चिया सीड्स आप पानी में एक बहुत ही अच्छा वो एक स्नैक टाइप का आप बना सकते हैं। कर्ड में आपने रात को, जैसे कई बार मैं करती हूँ, 1 टीस्पून ओट्स, 1 टीस्पून चिया सीड्स, एंड उसको मैं कर्ड में रात को डाल के रख देती हूँ फ्रिज में, एंड नेक्स्ट डे जब मुझे बीच में भूख लगती है, देन आई ऐड सम कुछ थोड़ा सा म्यूसली डाला, सीड्स डाले, नट्स डाले, एंड आई चॉप इन सम फ्रूट्स, वो एक बहुत अच्छा सा डेजर्ट टाइप का स्नैक बन जाता है, एंड दैट यू कैन हैव इट एवरी सेकेंड डे। मतलब आपने उसमें सारे नट्स भी डाल दिए, सीड्स भी डाल दिए, कर्ड इज प्रोटीन, प्रोबायोटिक्स, सो नो दिट्स अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और फ्राइड पैकेट फूड्स को लिमिट करना है। जैसे मैंने उस दिन मैंने फेसबुक लाइव सेशन लिया था अबाउट रीडिंग द लेबल्स। ऑलवेज चेक कि पोर्शन उसमें क्या रिकमेंडेड है। चिप्स का पैकेट खरीदने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा पैकेट खाएंगे, राइट। उसमें भी एक पोर्शन दिया गया होता है, 20 to 30 ग्राम्स ही आपको एक बार में, एक दिन में खाना है। सो ऑलवेज शेयर एंड लिमिट पोर्शंस, टेक इट ओकेजनली। और प्रोसेस मीट, शुगरी ड्रिंक्स, एक्सेस सॉल्ट, जो हम बहुत ज्यादा कई बार पिकल्स खाने लगते हैं, इंस्टेंट नूडल्स खाने लगते हैं, तो ये सारी जो मेरी गाइडलाइंस नहीं है, दीज आर ऑल WHO एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं, वेयर इफ यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट, ऑफ योर बॉडी, देन दीज आर द गाइडलाइंस दैट यू नीड टू फॉलो, राइट। लाइफस्टाइल हैबिट्स हमें क्या करनी है, टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, इसको हमें बहुत लिमिट में रखना है, या फिर प्लीज क्विट इट इफ यू कैन, ट्राई टू क्विट दिस। एंड स्लीप 7 to 8 hours, कीप बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल। एक्सरसाइज, आई हैव बीन ऑलवेज फोकसिंग कि आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है, 3 से 4 दिन इन अ वीक, at least, ये minimum है, and if you can go up to 5 days a week, that's wonderful, that gives you health benefits। और muscle strengthening की भी हमें बहुत ज़रूरत है। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस बैठने की जॉब है तो आप बीच में उठिए, थोड़ा सा वॉक करिए, या वॉकिंग अगर आप कुछ नहीं कर सकते, जस्ट डू अ ब्रिस्क वॉक ऑफ एटलीस्ट 40 to 45 minutes a day, which is enough, right? Okay,
ये तो बात की हमने हेल्दी डाइट की, बट देर आर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो जो हमारे हार्ट फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। सबको लगता है कि प्रोटीन खाना है, हमें फैट कम खाना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, पर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके हार्ट के फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, जैसे कोएंजाइम Q10, यू नो, उसका हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन हार्ट में होता है, राइट। ये हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है और ये हमारे सेल्स यूज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन में। सो ये जो है वो बहुत जरूरी है फॉर हार्ट मसल्स टू फंक्शन, हार्ट टू फंक्शन नॉर्मली। बी वाइटामिन अगेन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी। एनर्जी, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को एनर्जी चाहिए, राइट। अगर बी वाइटामिन की कमी होगी, आपके हार्ट को जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है टू पंप द ब्लड, वो नहीं मिलेगी। विटामिन सी, ई और कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, मतलब आपके जो फ्री रेडिकल्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस हम डेली एक्सपोजर होता है हमारा, राइट, तो उससे जो है दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स, वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो आपके हार्ट को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन डी जो है आपके फंक्शनिंग, हमें लगता है कि विटामिन डी सिर्फ बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ योर इंटायर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मतलब उसके मल्टीपल रोल्स हैं आपकी बोन्स के लिए, आपके हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, आपके आपके मसल फंक्शन के लिए, आपके कार्डियोवास्कुलर फंक्शन के लिए, आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है विटामिन डी। मैग्नीशियम अगर डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में, तो आपका जो रिदम होता है ना, लब डब, जो हमारा हार्ट की रिदम होती है, ब्लड वेसल्स है, उसको मैनेज रखने में, उसको हेल्दी रखने में, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, इवन मैग्नीशियम इज इम्पोर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। सो मैग्नीशियम की भी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में, इट कैन अफेक्ट आवर हार्ट, राइट। कैल्शियम जो है, आपने सुना होगा कैल्शियम सिर्फ बोन्स के लिए चाहिए, टीथ के लिए चाहिए, राइट, बट कैल्शियम जो है, और मैंगनीज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट इंटरैक्शंस होते हैं, एक न्यूट्रिएंट को दूसरे न्यूट्रिएंट की हेल्प चाहिए होती है टू फंक्शन प्रॉपरली। जो कैल्शियम है ना, हार्ट मसल्स जो है, तो कैल्शियम और विटामिन डी ना मसल फंक्शनिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। तो हार्ट मसल्स कैल्शियम का यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि हार्ट जो है पंप कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। उस रिदम के लिए, उस मसल फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। और मैंगनीज अगर आपकी बॉडी में इनफ नहीं है, तो कैल्शियम भी हार्ट मसल्स नहीं ले पाएंगे। ऐसे ही फास्फोरस, जिंक जो है वो इजेक्शन मींस आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, जहां से आपके वो चेम्बर जहां से आपके हार्ट से पूरी बॉडी तक ब्लड जा रहा है, उसको, उसमें से कितना ब्लड बाहर निकल रहा है, ये आपके फास्फोरस और जिंक के रिलेशनशिप पे बहुत डिपेंड करता है, राइट। जो कार्डियक सोसाइटीज हैं, जैसे कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, और जो जितने भी वर्ल्ड वाइड कार्डियक सोसाइटीज हैं, वो रेकमेंड करते हैं कि अगर आप 1 ग्राम पर डे, आप जो 2 ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ईपी और डीएचए, अगर 1 ग्राम और 1000 मिलीग्राम मिनिमम अगर आप लेते हैं, तो आप कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। Of course, it's just not omega 3. Omega 3 with these nutrients plus healthy lifestyle, exercise, along with this, these is not recommended by us. This is basically recommended by these very, very reputed organizations, right? और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट का भी हमने स्टडीज हुए हैं, बहुत सारी स्टडीज हैं ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट पे, जहाँ पे इसका बेनिफिट देखा गया है टू मेनी मेनी डिजीजेस, जैसे इन्फ्लेमेशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन्फेक्शंस एटसेट्रा। बट अगेन इसकी डोसेज वेरी करती है, मतलब अगर डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी, ऑन द काइंड ऑफ डिजीज, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट की डोसेजेस वेरी करती हैं, बट दिस हैज शोन वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। So now let's talk about USANA. So how these supplements can actually help you support your heart to function normally, keep your lifestyle better,
फर्स्ट ऑफ कोर्स जैसे हमने बात करी, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, मैंगनीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, इन सब की डेफिशिएंसी से इट्स जस्ट नॉट योर इंटायर बॉडी एक्चुअली गेट्स अफेक्टेड, राइट? सो कोर एसेंशियल्स में सारे वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी ओवरऑल बॉडी को सपोर्ट कर सकते हैं, हार्ट हेल्थ को, नॉर्मल हार्ट फंक्शन को, इम्यून सिस्टम फंक्शन को, एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ कोर्स। अब आप ये लिंक सोच सकते हैं कि बी वाइटामिन्स एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हार्ट से कैसे लिंक्ड है, हाउ कैल्शियम इज एक्चुअली लिंक्ड टू हार्ट, हाउ फॉस्फोरस एंड जिंक इज इम्पॉर्टेंट फॉर जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट पूरा ब्लड निकल के बॉडी में जा रहा है, कितना वो रेट है, इन सारे न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करता है, राइट? So core essentials will have almost very important nutrients, all the vitamins, minerals and antioxidants to keep your cells healthy, right? सेकेंड है ओमेगा, जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने रेकमेंड किया है कि आप एटलीस्ट 1000 EPA एंड DHA जो है आप कंज्यूम करिए टू गिव हेल्थ बेनिफिट्स, also to prevent cardiovascular diseases. And so biomega has basically again 1100 milligrams of EPA and DHA, and it also has vitamin D. So 2 capsules आपको दिन में लेने हैं. This has multiple. Omega-3 is like a need of the body. It's just not for heart health, it's for entire body that we need. अभी recently मैंने एक स्टडी पढ़ी है जहाँ पे omega-3 अगर डेफिशिएंट होते हैं, स्पेशली फॉर विमेन, इफ दे आर डेफिशिएंट इन omega-3 फैटी एसिड्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, तो उनका जो अल्जाइमर्स का ऑनसेट है ना, वो बहुत जल्दी हो जाता है. So they are very prone to Alzheimer's disease if they are deficient in their entire life with these omega-3 fatty acids, especially EPA और DHA. तो इसका भरपूर मात्रा में हमें, especially for women, it's not just for women, yes, but this study was conducted on women. So that is why it is so important. कोक्यूनॉन जैसे कोएंजाइम जो है, दैट इज रिसाइडिंग इन हार्ट, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन उसका हार्ट मसल्स में होता है. सो इसीलिए कोक्यूनॉन, वेयर इट हैज कोएंजाइम Q10 जो आपके हार्ट मसल्स को एनर्जी देता है टू पंप. एंड ऑफ कोर्स ALA इज एन एंटीऑक्सीडेंट, राइट? तभी इसको हार्ट हेल्थ से रिलेट किया गया है. सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई कोक्यूनॉन 100 फॉर हार्ट हेल्थ. ओके, प्रोफ्लेवनॉल, इसमें ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है विच इज 200 milligrams. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट सपोर्ट्स आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करता है, नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, बिकॉज इट हैज गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी जो हमें दिन भर में चाहिए ही चाहिए. और इसमें 80 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी है. ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट जैसे मैंने बताया 200 मिलीग्राम्स है. एंड ये जो स्टडी, ये जितना भी मैंने ये लिखा है यहाँ पे, आई हैव रेड लॉट ऑफ स्टडीज, उसके बाद ये रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ. वो सारी स्टडीज का जहाँ पे एक्चुअली ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट ने बहुत ही फेवरेबल इफेक्ट देखा था ऑन सीरम लेवल्स ऑफ LDL और ब्लड प्रेशर. वो डोसेज जैसे मैंने आपको कहा, वो रेंज कर रही थी फ्रॉम 1000 to 2000 milligrams per day, depending on the situation, depending on the severity of the condition. फाइबर, ऑफ कोर्स फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइबर जो है आपके वेट मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है, आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करने में, ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने में हेल्प करता है. फाइबर इज जस्ट नॉट फॉर कॉन्स्टिपेशन. सो मैंने कल सिलीगुड़ी में एक सेशन लिया था, वहां पे मैंने बताया कि core essentials, Biomega and Fiber G is requirement by everyone. मतलब Fiber G को आप pick and choose मत करिए. Fiber G is like a need of the body. Fiber is actually a need of the body. It's for your diabetes management. Fiber जो है आपके blood sugar levels को manage करने के लिए, cholesterol levels को manage, weight manage करने के लिए, आपकी gut health को, आपके gut में जो microbiome है उसको मेंटेन करने में, सपोर्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं ये फाइबर्स.
So again, it helps, these fibers helps in detoxification, digestive, weight and blood sugar levels. न्यूट्रीमील एक्टिव क्यों? क्योंकि इसमें वेरी गुड प्रोटीन है, हाई फाइबर है, और 24 एसेंशियल विटामिन मिनरल्स, स्पेशली जो जिनका वेट ज्यादा है वो ये यूज कर सकते हैं. इवन फॉर अ हेल्दी प्रोटीन सोर्स, फाइबर सोर्स हम इसको यूज कर सकते हैं. इट हैज अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और आप इसको एक या दो मील से रिप्लेस, आप यू कैन रिप्लेस दोज मील्स विद न्यूट्री मील, स्पेशली फॉर पीपल हु आर ओवरवेट. वेट मैनेज करने में, बिकॉज ये कैलोरीज कम दे रहा है, लेकिन आपके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी कमी नहीं होनी चाहिए, राइट? और बेसिकली इसमें वे प्रोटीन है, विच इज अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी प्रोटीन, जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं. फाइबर और प्रोटीन का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, तो ये आपके सटाइटी के लिए आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है. आपको लगता है कि हम मैं ज्यादा देर तक, मुझे एनर्जी है, मेरे को 2-3-4 घंटे तक भूख नहीं लग रही है. आई एम मोर, इट हैज 24 एसेंशियल विटामिन्स मिनरल्स ऑल्सो. इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट अगर आप इसको वेट मैनेजमेंट के लिए यूज करना चाह रहे हैं, या प्रोटीन सोर्स के लिए आप यूज करना चाह रहे हैं. दैट्स वेरी गुड. थैंक यू सो मच. एंड नाउ आई कैन टेक क्वेश्चंस इफ एनी. Systolic is upper, Sandhya. Yes, diastolic is lower wala, right? ओके, एनी क्वेश्चंस? आई थिंक आज सबको समझ में आया है क्या? एवरीथिंग. आई हैव नो क्वेश्चंस येट. ऑलराइट, दैट्स अमेजिंग. सो अगेन, मैं हमेशा इसको एम्फसाइज करती हूँ, होलिस्टिक अप्रोच को. ऑलवेज आप एक ये आप आदत बना लीजिए. हेल्दी लाइफस्टाइल को अगर आप आदत बनाएंगे, तो ये आपके लिए ही बहुत अच्छा है, राइट? सो आप लॉन्गर टर्म के लिए हेल्दी रह सकते हैं, राइट? ओके, कोई क्वेश्चंस? ओके, लो बीपी के कॉजेज जो हैं बहुत सारे हो सकते हैं. इट कैन बी कोई सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस हो गया है, या कुछ मेडिकेशंस जिनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या जिनके हार्ट इश्यूज रहे हैं ऑलरेडी, हार्ट फेलियर्स या हार्ट अटैक्स इनको हो चुके हैं, या कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से, कुछ इन्फेक्शंस की वजह से, कुछ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की वजह से, या प्रेगनेंसी में भी कई बार लो ब्लड प्रेशर हो जाता है. दे कैन बी मल्टीपल कॉजेज ऑफ लो ब्लड प्रेशर. फॉर बैड कोलेस्ट्रॉल विच इज गुड. सो कोलेस्ट्रॉल अगर, सो अगेन कोलेस्ट्रॉल के लिए आप हेपासिल भी दे सकते हैं, बिकॉज हेपासिल, लिवर एक्चुअली मेटाबोलाइजेस कोलेस्ट्रॉल, राइट? सो हेपासिल, fiber G, core essentials and biomega you can give for people who have higher cholesterol levels. But again, जैसे मैंने कहा, diet, exercise is very very important. Holistic approach should be taken, because these supplements support you. They help you, help आपकी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए. हाउ टू प्रिवेंट, विनोद जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रिवेंट, ओके, हाउ टू प्रिवेंट लो ब्लड प्रेशर और व्हाट? ओके, हाउ टू इम्प्रूव हार्ट हेल्थ. ये मैंने पूरा हार्ट हेल्थ के लिए ऊपर ही सेशन दिया है. गुड लाइफस्टाइल, गुड फाइबर इनटेक, हाई गुड प्रोटीन इनटेक, रेगुलर एक्सरसाइजेस, टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, कंज्यूम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रेगुलरली. ये सारे जो मेजर्स मैंने आपको बताया, दिस इज फॉर हार्ट हेल्थ. थैंक यू सो मच. ब्लड थिनर के साथ आप कोक्यूनोन ले सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट वेरी हाई डोसेज. ब्लड थिनर्स के साथ ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट कई बार नॉट रिकमेंडेड होता है.
you can take कोक्यूनॉन, that doesn't have any, और even जिनके जिनके जो ब्लड जो statins पे होते हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन कहते हैं, उसकी उनके लिए भी कोक्यूनॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ब्लड लोअरिंग मेडिसिन जो हैं वो कोक्यूनॉन का प्रोडक्शन को हमारी बॉडी में हैम्पर करते हैं। लो बीपी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट? सो हेल्दी लाइफस्टाइल, टेकिंग केयर ऑफ योर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, टेकिंग केयर ऑफ योर इम्यूनिटी, जो है, आप इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कोई भी हार्ट रिलेटेड इशू को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी जैसे आपने पूछा डायस्टोलिक डिसफंक्शन कैन बी क्योर्ड। यूसाना प्रोडक्ट्स आर सप्लीमेंट्स, दे आर नॉट मेडिसिन्स टू क्योर। they support you in your medical, in your journey। मतलब ये न्यूट्रिएंट्स अगर आपके नहीं होंगे बॉडी में तो आपका हार्ट फंक्शन के लिए ये जरूरी है, आपको सपोर्ट दे रहे हैं ये सप्लीमेंट्स। दीज आर नॉट क्योरिंग योर डिजीजेस, दीज आर सपोर्टिंग यू इन योर जर्नी। डायबिटीज अगर किसी को है या हार्ट इशू है, उनको मेडिकेशंस या डॉक्टर्स का एडवाइस फॉलो करना है। उनको, अगर वो मेडिसिन लेते रहेंगे बट वो अपनी डाइट पे फोकस नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, दे कैन नॉट recover from heart diseases or diabetes। So again, these are not for curing, these are supplements, these supplement your diet, they support you, right? किडनी सपोर्ट के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है सर। किडनी अगर कोई क्रॉनिक इश्यूज है, वी डोंट रेकमेंड एनी प्रोडक्ट, बिकॉज उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का रिस्ट्रिक्शन होता है, मैनेजमेंट होता है, द अमाउंट्स आर डिफाइंड। सो किडनी सपोर्ट एज इन जनरल सपोर्ट अगर आप कह रहे हैं तो आप हेपासिल, बायोमेगा, कोर एसेंशियल्स इज व्हाट आवर बॉडी एक्चुअली नीड्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। सो ये आप बेसिक दे सकते हैं, बट अगर कोई किडनी इशू है, किडनी प्रॉब्लम है, किडनी डिजीज है, देन वी डोंट रिकमेंड एनी सप्लीमेंट्स until unless डॉक्टर अप्रूव्स इट। यस, लो बीपी यू कैन टेक बायोमेगा, डेफिनेटली। कोर एसेंशियल्स भी आप ले सकते हैं। सी, एसिडिटी एंड हार्ट अटैक, सी इट्स नॉट, इसको जनरलाइज हम नहीं कर सकते। समटाइम्स सी सिम्टम्स वेरी, कई बार किसी को नोजिया होता है, किसी को एसिडिटी होती है। अगर इट्स वेरी वेरी रेगुलर तो आप प्लीज एक बार चेकअप जरूर कराएं, बिकॉज आई कांट से कि दिस कैन बी रिलेटेड टू हार्ट अटैक्स और नॉट, बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट सिम्टम। एंड एसिडिटी कैन बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन्स। एसिडिटी होती है जब आप बहुत लेट ब्रेकफास्ट करते हैं, लेट डिनर्स करते हैं, आप प्रॉपर मील टाइमिंग्स नहीं है, प्रॉपर स्केड्यूल नहीं है, if you're eating out too much, there can be multiple issues, multiple reasons for acidity। So if you are getting burps all the time after taking proflavanol or Biomega, then please ensure कि आप Biomega meals के साथ ले रहे हैं, राइट? आप दिन में ले रहे हैं, आप स्प्लिट कर सकते हैं बायोमेगा को। आप 1 टैबलेट या 1 कैप्सूल आप ब्रेकफास्ट में लीजिए, ब्रेकफास्ट के साथ, और एक कैप्सूल आप लंच के साथ लें। एंड प्रोफ्लेवनॉल जो है आप अगेंस्ट जो है मॉर्निंग, इफ इट्स नॉट सूटिंग यू एम्प्टी स्टमक, देन प्लीज प्लीज प्रोफ्लेवनॉल को भी ब्रेकफास्ट या लंच के साथ ही लेना है। और अगर आपको ये तब भी प्रॉब्लम करता है, देन यू कैन टेक इट ऑल्टरनेटिवली। आप एक दिन बायोमेगा लीजिए मील्स के साथ, अगले दिन आप प्रोफ्लेवनॉल लीजिए, ऑल्टरनेट कर सकते हैं। सो दे कैन बी मल्टीपल कॉम्बिनेशंस दैट यू कैन ट्राई। No, there are no side effects of Biomega. How will it be side effect जब वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है इतनी? अगर आप डेली विटामिन डी लेते हैं या विटामिन बी लेते हैं, आप डेली खाना खा रहे हो, डेली न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, क्या उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं? नो। इफ यू एक्सीड द अमाउंट, अगर विटामिन डी भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है लेकिन आप उसको बहुत बहुत हाई लेवल्स पे डेली लेते जा रहे हो, तो वो टॉक्सिसिटी इवन विटामिन डी कैन डू।
बट अगर आप रेकमेंडेड डोसेज पे जो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है उस पे आप लेते हैं लॉन्गर टर्म, देन देयर आर नो साइड इफेक्ट्स, राइट? आप अगर आपको लग रहा है कि उससे कुछ गैस या एसिडिटी के इश्यूज हो रहे हैं तो आप उसको मील्स के साथ लीजिए, गैप में लीजिए, ऑल्टरनेट ले सकते हैं। या फिर आप कोई भी सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं, आप उसको 3 से 6 महीने लगातार ले सकते हैं। आप 1 महीने का गैप दीजिए, फिर आप स्टार्ट कर लीजिए। दैट यू कैन डू दैट, आई ऑल्सो डू। मतलब मैं 6 महीने लगातार लेती हूँ, 3 महीने लेती हूँ, फिर मैं 1 महीने का गैप देती हूँ, देन अगेन आई स्टार्ट विद सप्लीमेंट्स, बिकॉज दिस इज the need of your body. These nutrients are required by your body. Excess acidity, teeth pain, headache, no proper sleep, what supplements? Sir, you have to work on your lifestyle, right? Supplements help नहीं करेंगे until unless you improve your lifestyle. You have to exercise daily. You have to take your meals properly. मतलब आप 9 बजे से पहले ब्रेकफास्ट करें। उठने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट होना चाहिए आपका। Drink good amount of water, 2 to 3 liters of water. स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, लेट डिनर्स नहीं करने। आपके डिनर और बेड टाइम में एटलीस्ट 3 घंटे का गैप होना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। स्लीप, इफ यू कैन नॉट स्लीप, प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर ऑल्सो, एंड ट्राई मेडिटेशन, ट्राई रिलैक्सिंग थेरेपीज फॉर यू ऑल्सो। teeth pain hai, please visit a doctor, a dentist, right? And supplements that everybody requires for normal body functioning is core essentials, biomega, and if you have certain anxiety या ऐसा कुछ है, stress है, तो आप कोपा प्राइम ले सकते हैं। but again you need to work on your body, on your lifestyle, on your exercise, on your diet. Please consult a doctor for these issues if you're having consistent pain, teeth pain, problems like this. प्रोफ्लेवनॉल आप लंच ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं, एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हैं, बट इट्स प्रेफरेबली ब्रेकफास्ट के साथ आप लीजिए। yes, if you're having, कल्पना, if you're having getting burps even after having food, तो आपको अगेन जो मैंने अभी लाइफस्टाइल के आपको चेंजेस बताए कि उठने से 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको ब्रेकफास्ट लेना है। don't delay your breakfast. Delay activities, not your breakfast, right? स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब 2 से 3 घंटे में आपको छोटे छोटे मील्स लेने हैं दिन भर में। डोंट स्टफ इन योर स्टमक एट अ टाइम। आप जैसे लंच लेते हैं तो अगर आप 2 रोटी से आपको लगता है मेरा पेट पूरा भर गया है, तो आप उसको 1 या 1.5 करें। दूसरा, रात को आफ्टर 6 PM प्रोटीन अवॉइड करें, एनी काइंड ऑफ प्रोटीन विच इज दाल, पनीर, सोए, एनी प्रोटीन। and at least 2 to 3 hours of gap between your dinner and your bedtime. Regular physical activity 4 to 5 times a week, and of course enough sleep, which is very very important. दिन में 1 बार या 2 बार क्या लेना है? ओके, 1 बार ही लेना है। प्रोफिलेवनॉल की 1 टैबलेट ही रेकमेंडेड है विद ब्रेकफास्ट। I think I've answered most of the questions. Thank you so much, everyone. I've overshooted the time also. Thank you. Good night, everyone. Thank you.